Assalamu alaikum and welcome. Grade 9. This is Shahid Ali from the Educators Al Alim campus. Mathematics grade 9. Let's start. Page number 106, exercise 6.2, question number 1. For each of the following right angle triangle, find the trigonometric ratios. Let's see what are the trigonometric ratios. These three sentences, some people have curly brown hair through proper brushing. You have already read in physics. These are 6 trigonometric ratios or uh, trigonometric functions. And here are 3 definitions which are not present in your book, so you have to write in your book. Define hypotenuse, perpendicular or altitude, base. Some people have, मैंने बोल्ड किया हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप, S, P and H. S mean sine, P stands for perpendicular and H stands for hypotenuse. Sine, some people have, and the reciprocal of sine is cosecant, which is H over P. Definitely it is a reciprocal ratio. Curly brown hair, we required C, B and H. C stands for cos, P, H, B, H, base and hypotenuse, and the secant is its reciprocal identity is equal to H over B, mean hypotenuse over base. Through proper brushing, T mean tan theta and PB mean perpendicular and base, and its reciprocal is cot theta, which is B over P mean base over hypotenuse. What is hypotenuse, what is perpendicular, what is base? These are the definitions. Yes. So what is hypotenuse? The opposite side of right angle. Right angle mean opposite to the 90 degree is called hypotenuse. ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल मीन 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड यहाँ पे आप देख रहे हैं एच, हाइपोटेन्यूज. मीनवाइल परपेंडिकुलर द अपोजिट साइड ऑफ अंडर कंसिडरेशन एंगल और इन अ राइट ट्राइंगल. अंडर कंसिडरेशन एंगल मीन विच एंगल इज बीइंग यूज्ड. इफ थीटा इज अंडर कंसिडरेशन एंगल then the opposite side is 4, which is perpendicular. If phi is under consideration angle, then the opposite side of 5 is 3, which is perpendicular, and the rest of the side. But the proper definition of the base is the common arm of right angle and under consideration angle is called base. The common arm कि वो साइड जिसके ऊपर 90 के एंगल भी बने और अंडर कंसिडरेशन एंगल भी बने, वो वाली बेस होती है. यहाँ पर देखें आप, राइट एंगल मीन 90 डिग्री और अंडर कंसिडरेशन एंगल ये इस साइड के ऊपर बन रहा है, तो बेस अब इसमें क्या बन गई, ये वाली. तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है अंडर कंसिडरेशन एंगल के ऊपर, जिसकी वजह से ये चेंज हो सकते हैं. बट हाइपोटेन्यूज इज फिक्स विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल. This exercise depend upon these 3 definitions and the above Pythagorean identities or ratios, trigonometric ratios. Not only this exercise depend upon these 3 definitions and the 6 trigonometric ratios, rather next 2 exercise are depend upon the trigonometric ratios and 3 definitions. बुक पे 106 पेज पे चलते हैं हम. डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उसका ए पार्ट है. आप देख रहे हैं इस एक ट्राइंगल में उसने एंगल 5 भी दिया हुआ और एंगल थीटा भी दिया हुआ ना, और ये एक साइड 4 है, एक 5 है, एक 3 है. तो इसको मैंने सॉल्व करना है.
और मैंने किया है, इसको मैंने स्प्लिट किया टू राइट ट्राइंगल में। वो कैसे किया याद रखिएगा, एक थीटा है एक फाई है, इन दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंगली मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ये देखें, ये दोनों राइट ट्राइंगल को मैंने स्प्लिट कर दिया है, एक को थीटा के अकॉर्डिंगली एक को फाई के अकॉर्डिंगली। अब जिसमें थीटा, दिस इज अंडर कंसिडरेशन एंगल, सो परपेंडिकुलर ये वाली साइड बन गई, 90 की अपोजिट हाइपोटेन्यूज जो एक बचेगी वो वाली बेस। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल मैंने ली, उसी ट्राइंगल को जिसमें एक एंगल फाई यूज़ किया गया जो कि उसने भी किया था, तो फाई अंडर कंसिडरेशन एंगल होगा, तो इसकी अपोजिट साइड ये 3 जो कि बन गई हमारे पास परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड रेस्ट वन इज बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों में चेंज हो रहा है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस ये है, इसमें परपेंडिकुलर नीचे आ गया और बेस वर्टिकली आ गई। सो उसके बाद आपको मैंने ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज थी या रेशियोज थी उनको कहा था कि आपने उनको लर्नड बाय हार्ट एंड देन विजुअलाइज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सम पीपल हैव, ये लिखा हुआ मैंने, आपने भी ऐसे करना है। करली ब्राउन हेयर, ये सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, रेशियोज हैं, ये 5 और 5 ये और ये 10 ये बुक में दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा इनकी आप वैल्यू फाइंड करें। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सेकंड इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉज, सो कॉज का रेसिप्रोकल H/B ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप, और कोसेकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या बन गई हमारे पास H/P ये लिखा हुआ, H/P बन गया। तो वहाँ से आपने सिर्फ वैल्यू इनकी ढूंढनी है। ये जब आपने PHB सारा कुछ लिख लिया तो वहाँ से वैल्यू इनकी ढूंढते जाएं और इसकी जगह पे पुट करते जाएं। जैसे P है तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे दी गई 4, और H है तो उसकी वैल्यू 5, तो ये 4/5। इसी तरह सारी की सारी आपने यूज़ कर लेनी। इसी तरह यहाँ पे आ जाए हम, तो मैंने क्या किया, थीटा वालों को मैंने अलग करके लिख दिया हुआ है, और ये वाले थीटा वाली सारी वैल्यू, ये मैंने 5 वाली को 5 वैल्यूज़ को अलग लिखा हुआ, वैल्यूज़ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। इनमें कॉट है, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan के ऊपर जाएं आप, क्या होता है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये बन जाएगा ब्रशिंग प्रॉपर, ये उल्टा लिखा हुआ इसका, tan थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। कोसेकेंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन क्या है सम पीपल है, और ये क्या बन जाएगा हैव पीपल। सेकंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉज करली ब्राउन हेयर, और ये हमारे पास क्या बन गया जी हेयर ब्राउन, कॉज करली ब्राउन हेयर। तो इनको भी आपने क्या करना है, ये यहाँ पे अंडर कंसिडरेशन एंगल फाई, क्यों कि ये एंगल इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फंक्शन में यूज़ हो रहा है तो फाई है, इनमें थीटा यूज़ हो रहा है तो हमारे पास अंडर कंसिडरेशन एंगल क्या होगा थीटा। तो यानी कि अंडर कंसिडरेशन एंगल का मतलब मैंने आपको द अंडर कंसिडरेशन एंगल इज दैट विच इज़ बीइंग यूज्ड, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फंक्शन में आइडेंटिटी में यूज़ हो रहा है वो अंडर कंसिडरेशन। तो इसकी तमाम वैल्यू रेलिवेंट यहाँ से उठाएं और इनकी रेलिवेंट प्लेसेस पे पुट कर दें, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह इस एक क्वेश्चन में उसने 3 ट्राइंगल दी हुई हैं, ये बुक पे आप देख सकते हैं 106 पेज पे, ये सेकंड है और ये वाली थर्ड है। यानी कि ये की ऊपर वाली 10 की 10 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनको इसके ऊपर भी फाइंड करना है, जो कि हम कर चुके हैं, इसके ऊपर भी करना है और इसके ऊपर भी आपने करना है। ठीक, तो मैंने जैसे बनाया आपने भी ऐसे ही इसको स्प्लिट कर लिया 2 राइट ट्राइंगल में, एक में एंगल थीटा रख लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगी। दूसरी ट्राइंगल में ये एंगल फाई यूज़ करेंगे सिर्फ, जिसमें परपेंडिकुलर नीचे वाली बन जाएगी और बेस ये बन जाएगी, जैसे पहले किया। वैसे मैं होमवर्क भी आपको सेंड कर दूँगा, तो ये आपने सारे तीनों क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने मज़ीद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी बेटे, लेट्स मूव फॉर होमवर्क। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन है, उसके 3 पार्ट ABC, जिनमें से एक मैंने कर दिया ए पार्ट, और ये आपका होमवर्क आ गया B और C, और ये आपका वो जो आपने अपनी बुक पे लिखना डेफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व किए गए।